اسلامی تاریخ میں حضرت آسیہ بنت مزاحم کا نام نہایت عظمت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں میں سے کامل ترین قرار دیا۔ یہ 4 خواتین حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ حضرت آسیہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنین کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ لیکن یہ عظیم خاتون کس طرح دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور متکبر بادشاہ کی بیوی بنے؟ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایمان، صبر اور استقامت کی داستان ہے۔ حضرت آسیہ کا خاندانی پس منظر۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم مصر کے ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ بعض روایات کے مطابق اب کا تعلق بنی اسرائیل کی نسل سے تھا، جبکہ بعض مورخین کے نزدیک اب مصری نسل سے تھیں، لیکن توحید پرست خاندان کی فرد تھیں۔ اب کی شخصیت کی تشکیل ایسے ماحول میں ہوئی جہاں اخلاقی اقدار، نیکی اور راست بازی کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اب کے والدین نے اب کی پرورش انتہائی نیک اور پاکیزہ ماحول میں کی۔ اب بچپن سے ہی نہایت ذہین، خوبصورت اور نیک طبیعت کی مالک تھی۔ فرعون کی شخصیت اور حکومت۔ فرعون، جس کا اصل نام بعض مورخین کے مطابق ولید بن مصب تھا، مصر کا طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ انتہائی متکبر، ظالم اور خود پرست حکمران تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ قرآن میں اس کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کی حکومت میں لوگ خوف و دہشت میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم ڈھاتا تھا۔ ان کے مردوں کو غلام بناتا، ان کے بچوں کو قتل کرواتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تاکہ وہ اپنی خدمت کر سکے۔ اس ماحول میں فرعون کی شان و شوکت اور طاقت کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس کے محلات شاندار تھے، اس کے خزانے دولت سے بھرے تھے اور پوری مصری سلطنت اس کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ شادی کا پس منظر۔ حضرت آسیہ کی خوبصورتی، شرافت اور اعلیٰ اخلاق کی شہرت پورے مصر میں تھی۔ جب فرعون کو ان کے حسن و جمال اور شرافت کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر ان سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ فرعون کی طرف سے شادی کی تجویز دراصل کوئی تجویز نہیں بلکہ ایک حکم تھا۔ اس زمانے میں فرعون کی مرضی قانون تھی اور کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت آسیہ کے خاندان کے سامنے یہ انتہائی مشکل صورتحال تھی۔ ایک طرف وہ اپنی بیٹی کو اس ظالم بادشاہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے جو خود کو خدا سمجھتا تھا، لیکن دوسری طرف فرعون کے غضب اور قہر کا خوف بھی تھا۔ فرعون کے درباری اور نمائندے حضرت آسیہ کے گھر آئے۔ انہوں نے بادشاہ کی مرضی سے آگاہ کیا۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا، یہ فرمان تھا جس کی تعمیل لازمی تھی۔ حضرت آسیہ کے والدین انتہائی پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فرعون سے انکار کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ فرعون نے معمولی باتوں پر لوگوں کو سولی پر چلایا، قتل کروایا اور ان کے خاندانوں کو تباہ کیا۔ حضرت آسیہ کی مجبوری۔ حضرت آسیہ ایک نیک طبیعت اور صاحب ایمان لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا۔ وہ اس کے کفر اور شرک سے واقف تھی، لیکن حالات اس قدر مجبور کن تھے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت آسیہ کو یہ احساس بھی تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ شاید ان کا یہ قربانی بھرا قدم کسی بڑے مقصد کے لیے ہو۔ ایمان والے لوگ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ خاندان کے بزرگوں نے حضرت آسیہ کو سمجھایا۔ انہیں بتایا گیا کہ فرعون کے حکم سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کریں گے تو نہ صرف ان کی بلکہ پورے خاندان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ حضرت آسیہ نے اپنے والدین کی پریشانی دیکھی، اپنے خاندان کے خوف کو محسوس کیا اور ایک بہادر فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ رشتہ قبول کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوگا۔ شادی کی تقریب۔ فرعون کے محل میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ کوئی معمولی شادی نہیں تھی بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کی شادی تھی۔ پورا مصر اس شاندار تقریب کی تیاری میں مصروف تھا۔ محل کو پھولوں اور قیمتی کپڑوں سے سجایا گیا۔
सोने और चांदी के जेवरात की नुमाइश की गई। मूसीकार और रक्कासाई मंगवाई गईं। पूरी सल्तनत से अमीर और बासर लोग शादी में शिरकत के लिए आए। हजरत आसिया को शाही लिबास पहनाया गया, कीमती जेवरात से आरास्ता किया गया, लेकिन उनका दिल इस ज़ाहिरी चमक दमक में खुश नहीं था। उनका दिल सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे था। शादी की रस्म अदा हुई और हजरत आसिया फिरौन की बीवी बन गईं। ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था जो इख्तियार से नहीं बल्कि मजबूरी से कबूल किया गया था। फिरौन के महल में जिंदगी शुरू हुई। यहाँ हर किस्म की मादी आसाइशें मौजूद थी। खादिम और खादमाए हुक्म बजा लाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। कीमती खाने, शानदार कपड़े, हीरे जवाहरात, सब कुछ मुयस्सर था। लेकिन हजरत आसिया के दिल को ये सब चीज़ें सुकून नहीं दे सकती थी। वो जानती थीं कि ये सारी चमक दमक आर्जी है। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। महल में हजरत आसिया को फिरौन के कुफ्र और शिर्क का सामना रोजाना करना पड़ता। फिरौन अपने आप को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। ये हजरत आसिया के लिए इंतहाई तकलीफ दे था। लेकिन हजरत आसिया ने अपने ईमान को छुपाया। वो दिल में अल्लाह वाहिद की इबादत करती लेकिन जाहिर में खामोश रहती। ये उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। फिरौन के जुल्म का मुशाहिदा। हजरत आसिया को महल में रहते हुए फिरौन के जुल्म और सितम का करीब से मुशाहिदा करना पड़ा। वो देखती कि किस तरह बनी इसराइल पर जुल्म ढाया जाता है, किस तरह मासूम बच्चों को कत्ल किया जाता है, किस तरह लोगों को गुलाम बनाया जाता है। ये सब कुछ देखना हजरत आसिया के लिए निहायत अजियतनाक था। वो एक नरम दिल और रहम दिल औरत थीं। दूसरों की तकलीफ उन्हें बेचैन कर देती थी, लेकिन वो मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। रात को जब तन्हा होतूं तो अल्लाह के हुजूर रोत, दुआएं मांगत, अल्लाह से मजलूमों के लिए रहमत की दुआ करती और अपने लिए सब्र और इस्तिकामत की। अल्लाह ताला की हिकमत का एक हैरत अंगेज मजहर इस वक्त जाहिर हुआ जब दरियाए नील में बहते हुए एक संदूक हजरत आसिया को मिला। इस संदूक में एक खूबसूरत बुच्चा था। ये बुच्चा हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम थे, जिनकी वालिदा ने फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए उन्हें संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया था। अल्लाह की तकदीर के ये संदूक फिरौन के महल में पहुंचा। हजरत आसिया ने जब इस मासूम बच्चे को देखा तो उनका दिल इस पर फिदा हो गया। अल्लाह ने उनके दिल में इस बच्चे की मोहब्बत डाल दी। हजरत आसिया की औलाद औलाद नहीं थी और ये बच्चा उनके लिए बाइस तस्कीन बना। फिरौन ने इब्तिदा में इस बच्चे को मारने का हुक्म दिया क्योंकि इसे शक था कि ये बनी इसराइल का बच्चा है। लेकिन हजरत आसिया ने बड़ी इल्तिजा और इसरार से फिरौन को मनाया। कुरान में अल्लाह ताला ने ये वाक़या बयान किया है कि हजरत आसिया ने फिरौन से कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की खंडक है, इसे कत्ल ना करो, हो सकता है कि ये हमें फ़ायदा दे, हम इसे बेटा बना ले। अल्लाह की हिकमत देखिए कि फिरौन ने इसी बच्चे को पाला जो बड़ा होकर इसकी तबाही का सबब बना, और हजरत आसिया को इस मासूम नबी की परवरिश का शर्फ मिला। हजरत आसिया का किरदार बतौर माँ। हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की परवरिश बेहतरीन अंदाज में की। वो उनकी वालिदा तो नहीं थी, लेकिन वालिदा से बढ़कर मोहब्बत और शफकत के साथ उन्हें पाला। उन्होंने हजरत मूसा को नेक अखलाक, सच्चाई और इंसाफ की तालीम दी। महल के माहौल में रहते हुए भी उन्होंने हजरत मूसा को आजिज़ी और इंकिसारी सिखाई। हजरत आसिया जानती थीं कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। अल्लाह ने उनके दिल में ये यकीन डाल दिया था कि इस बच्चे की तकदीर में कुछ खास है, इसलिए उन्होंने पूरी मोहब्बत और तवज्जो से इसकी परवरिश की। ईमान का इंकिशाफ और आजमाइश। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को नबुव्वत मिली और उन्होंने फिरौन को तौहीद की दावत दी, तो हजरत आसिया के लिए एक नया दौर शुरू हुआ। हजरत मूसा के मोजिज़ात देखकर और उनकी दावत सुनकर हजरत आसिया का दिल मजीद पुख्ता हो गया। उन्होंने खिलकर हजरत मूसा पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। ये फैसला हजरत आसिया के लिए बहुत बड़ा था। वो जानती थीं कि फिरौन कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी बीवी इसके खिलाफ जाए और मूसा पर ईमान लाए। फिरौन को जब अपनी बीवी के ईमान का पता चला तो वो आग बगूला हो गया। इसने हजरत आसिया को समझाने की कोशिश की, धमकियां दी, लालच दिया, लेकिन हजरत आसिया ने एक लम्हे के लिए भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना गवारा नहीं किया।
अजाब और शहादत। जब फिरौन को यकीन हो गया कि आसिया अपने ईमान से फिरने वाली नहीं है, तो इसने इंतहाई जालिमाना सज़ा का फैसला किया। रवायात के मुताबिक फिरौन ने हज़रत आसिया को सख्त अज़ियतें दी। उन्हें तपती धूप में ज़मीन पर लुटाया गया, उनके हाथ पाँव बांधे गए, उनके सीने पर भारी पत्थर रखा गया। लेकिन उन तमाम अज़ियतों के बावजूद हज़रत आसिया का ईमान मजबूत रहा। उन्होंने अपने रब से दुआ की जो कुरान में महफूज है, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और इसके अमल से नजात दे और मुझे जालिमों की कौम से नजात दे। रवायत है कि जब हज़रत आसिया ने ये दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत में उनका घर दिखा दिया। उन्होंने मुस्कुरा कर जान दे दी। फिरौन के सिपाही हैरान थे कि इतनी अज़ियतों में भी ये औरत मुस्कुरा रही है। वो नहीं जानते थे कि हज़रत आसिया अपनी जन्नत को देख रही थी। हज़रत आसिया की अज़मत और मकाम। हज़रत आसिया की ज़िंदगी ईमान, सब्र और कुर्बानी की बेमिसाल दास्तान है। उन्होंने दुनिया की तमाम आसाइशें, शाही ज़िंदगी, महल्लात, दौलत, सब कुछ अपने ईमान के लिए कुर्बान कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की बेहतरीन औरतों में से एक आसिया बिन्त मुज़ाहिम है। ये कितना बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नत की सरदार ख़वातीन में शुमार किया। कुरान मजीद में अल्लाह ने मोमिनीन के लिए हज़रत आसिया को मिसाल के तौर पर पेश किया है। ये बताता है कि माहौल चाहे कितना ही बुरा की ना हो, अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो वो रास्त पर कायम रह सकता है। तज्ज़िया और सबक। हज़रत आसिया की ज़िंदगी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सब्र और इस्तिकामत की अहमियत। हज़रत आसिया ने इंतहाई मुश्किल हालात में सब्र का मुजाहरा किया। ज़बरदस्ती की शादी, फिरौन जैसे जालिम के साथ ज़िंदगी और फिर आखिर में शहादत तक हर मरहले पर उन्होंने सब्र किया। ये सबक हमें सिखाता है कि मुश्किलात में सब्र करना ईमान का हिस्सा है। ईमान की ताकत। हज़रत आसिया का ईमान इतना मजबूत था कि दुनिया की तमाम आसाइशों ने इसे मुतज़लज़ल नहीं किया। फिरौन के खौफ ने उन्हें डगमगाया नहीं। ये बताता है कि सच्चा ईमान इंसान को कितनी ताकत देता है। माहौल का असर। हज़रत आसिया ने साबित किया कि बुरे माहौल में रहते हुए भी नेक रहा जा सकता है। फिरौन के महल जैसी जगह में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पाकीज़गी बरकरार रखी। ये सबक आज के दौर में बहुत अहम है जब लोग माहौल को बहाना बनाते हैं। कुर्बानी की अज़मत। हज़रत आसिया ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी लेकिन ईमान से पीछे नहीं हटे। ये हमें सिखाता है कि दीन के मुआमले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। औरत की ताकत। हज़रत आसिया ने साबित किया कि औरत कमज़ोर नहीं होती। जब ईमान मजबूत हो तो औरत भी अजीम कुर्बानियां दे सकती है। फिरौन जैसे जालिम के सामने भी वो डटी रहे। दुआ की अहमियत। हज़रत आसिया की दुआ कुरान में महफूज है। मुश्किल वक्त में उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। ये हमें सिखाता है कि दुआ सबसे बड़ा हथियार है। ज़बरदस्ती की शादी का मसला। इस्लामी नुक्ता नज़र। हज़रत आसिया की ज़बरदस्ती की शादी का वाक़या एक अहम सवाल उठाता है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती की शादी का क्या हुक्म है। इस्लाम ने शादी में दोनों फरीकों की रज़ामंदी को लाज़मी करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा औरत से इसकी इजाज़त लिए बग़ैर निकाह नहीं किया जाएगा और कनवारी लड़की से इसकी रज़ामंदी ली जाएगी। हज़रत आसिया का वाक़या इस्लाम से पहल का है जब ऐसे कवानीन नहीं थे। जालिम बादशाह जो चाहते थे करते थे, लेकिन इस्लाम ने औरत को ये हक दिया कि वो अपनी मर्जी से शादी का फैसला करे। और आज के दौर में भी बहुत से लोग मुश्किल हालात में हैं। कुछ लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जो दीन के खिलाफ है। कुछ लोग ऐसे रिश्तों में बंधे हैं जो उन्हें पसंद नहीं। हज़रत आसिया की ज़िंदगी हमें हौसला देती है कि मुश्किल हालात में भी ईमान पर कायम रहा जा सकता है। सब्र और इस्तिकामत से काम लिया जाए, अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। साथ ही ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ज़बरदस्ती की शादी कितनी बुरी चीज़ है। ये इंसान की ज़िंदगी को जहन्नम बना देती है। इस्लाम ने इससे मना किया है और हमें इससे बचना चाहिए। हज़रत आसिया का मकाम आखिरत में। हज़रत आसिया को अल्लाह ने जन्नत में आला मकाम अता फरमाया। उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। दुनिया में उन्होंने तकलीफ़ें सही लेकिन आखिरत में उन्हें बेपाया खुशियाँ मिले।
ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی، ظالموں کی قوم سے بچایا اور جنت میں بہترین گھر عطا فرمایا۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنے اعمال کا حساب دیں گے، حضرت آسیہ جنت کی سردار خواتین میں ہوں گی۔ حضرت آسیہ کی زندگی ایک عظیم داستان ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ان کی زبردستی کی شادی ایک مجبوری تھی، لیکن انہوں نے اس مشکل صورتحال کو بھی نیکی کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور آخر میں اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے رب سے غداری نہیں کی۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی برے ہو، اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو وہ کامیاب رہتا ہے۔ دنیا کی مشکلات عارضی ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی ابدی ہے۔ حضرت آسیہ کی مثال ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی مشکلات میں صبر کریں، ایمان پر قائم رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، جیسے اس نے حضرت آسیہ کی مدد فرمائی۔ یہ واقعہ ہر مسلمان، خاص طور پر ہر مسلمان عورت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ عورت کتنی طاقتور ہو سکتی ہے، کتنی صابر ہو سکتی ہے اور کتنی عظیم قربانیاں دے سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت آسیہ جیسا ایمان، صبر اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اتنی بڑی نہیں کہ سچے مومن کو ڈگمگا سکے۔ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑا مقصد ہے اور اسی کے حصول کے لیے ہر قربانی قابل قبول ہے۔